Assalamu alaikum. Today's topic is the structure of character table. Structure of character table. We have completed the derivation of the reducible representation. We have completed the reducible representation. Now, the structure of character table. Firstly, what is a character table? Character table is a way. It is actually a way. A character table. A character table is a way. Is a way which can be utilized for the application of group theory to the molecular symmetry. Okay. Each character table has 4 columns with different symbols. Each character table has 4 columns with different symbols. Okay, beta? This character table is for different point groups. The different point groups have different character table, and this character table is used for the application of group theory to the molecular symmetry. And you will see in case of this character table, there are 4 columns in case of character table. You will see here, first I will show you the structure of this character table. Yeah. The structure of character table is this way. Column first is here. This is column first, column second, column third and fourth. And column fourth. Column first is used for actually in this column first. Here is a point group is written here, point group, whether it is a C2V, whether it is a whether it is a G3H, whether it is tetrahedral, everything you have to write the point group here, and here it is written as classes. These two are blank here. I will tell you the application of these 2 columns, but in this column, in the column first above, you will see there will be the written point group, and in the column second, in the above there will be the classes. In case of column second, you have already done this. With the help of Gauss theorem, you have derived the irreducible representation. That is the column second. Column second is actually the array of characters. Which have been derived from Gauss theorem. These actually are the irreducible representations here. In column second, these are the irreducible representation. यहाँ पे जाके जो आप देख रहे हो कॉलम सेकंड में जो irreducible representation आप निकाल रहे हो with the help of Gauss theorem, वो यहाँ पे जाके होता है, ठीक है बेटा? तो column first is derived. Column first जो यहाँ पे हम देते हैं नाम, वो हम derive कर रहे हैं कहाँ से? Column 1 is composed of Mulliken symbols for irreducible representation present in the column second. There is a Mulliken symbols here. There is a Mulliken symbol in this case. Mulliken symbols in column first for column second irreducible representations.
कॉलम सेकंड के जो इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हैं उनके लिए जो मुल्कन सिंबल है वो यहाँ पे कॉलम फर्स्ट में लिखी जाती है। जो अभी तक आपने देखा, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा होगा, जो हमने अभी इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की, वहाँ पे मैंने लिखा टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3, टाउ 4। Now we will change the tau 1, tau 2, tau 3, tau 4. We will now give the name of these tau 1. What is the reducible representation of tau first? यहाँ पे क्या लिखेंगे? For example, यहाँ पे reducible representation आप देखेंगे। यहाँ पे क्लासेस होते हैं आपके पास। For example, E है, C2 है, sigma V XZ है और sigma V YZ है। These are the classes here. और इसका यहाँ पे जाके array of characters आती है। यहाँ पे जाके आपके array of characters होते हैं। For example, आपको यहाँ पे लिखा होता है 1 1 1 1 1 1 1 1, फिर 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1, इसी तरीके से 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1, इस तरीके से कुछ होगा। तो यहाँ पे बेटा जो कैरेक्टर्स है, जो सेकंड में यहाँ पे कॉलम सेकंड में जो कैरेक्टर्स हैं उनके बेस पे यहाँ पे मुल्कन सिंबल दी जाती है। ठीक है, मुल्कन सिंबल दी जाती हैं। इन दिस केस यहाँ पे आपको मुल्कन सिंबल आपको दी जाएगी। अब यहाँ पे टाउ 1 हम हटा के यहाँ पे मुल्कन सिंबल देंगे, जो आप जानते भी है कि मुल्कन सिंबल या तो यहाँ पे इस तरीके से A1G, यहाँ B1G या B2G या T2G, जिसको आप देखते हो T2G या EG, ये किस तरीके से दी जाएगी। तो यहाँ पे मुल्कन सिंबल्स है, दिस विल बी द मुल्कन सिंबल्स। ठीक है, तो किस तरीके से यहाँ पे निकालते हैं वो ऑन द बेस ऑफ कॉलम सेकंड के बेस पर लेते हैं। इसलिए कैरेक्टर टेबल सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैरेक्टर टेबल में हम सबसे पहले कॉलम सेकंड को डिराइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉड थ्योरम, ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम, जिसमें आपने वो रूल्स चार्ट पढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे ये करने के बाद कॉलम थर्ड जो होता है, कॉलम थर्ड में यहाँ पे लीनियर फंक्शन होते हैं, लीनियर एंड रोटेशनल फंक्शंस, और इसमें कॉलम फोर्थ में होता है बाइनोमियल एंड पॉलिनोमियल फंक्शंस, और सिंपली इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शंस। इनकी क्या यहाँ पे जाके एप्लीकेशन है वो अभी आएगा। इनकी एप्लीकेशन क्या है कॉलम थर्ड की और कॉलम फोर्थ की। इसमें जाके अगर आप देखेंगे कॉलम थर्ड को आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा एक्स वाई जेड, जनरली यहाँ होगा आर एक्स आर वाई आर जेड। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेटर्स आपके पास होते हैं, चाहे रोटेशनल कोऑर्डिनेटर्स होते हैं या कार्टेशियन कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, उसके बाद इसके बारे में यहाँ पे आपको दी जाती है इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन किस तरीके से रिलेटेड है यहाँ पे वो आपको बोला जाएगा। तो किस तरीके से वो आर के साथ रिलेट है या रमन के साथ रिलेट है या आपके हाइब्रिडेशन के साथ रिलेट है वो आपको बोला जाएगा। इसी तरीके से क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन में आपको जनरली आपको आएगा इस तरीके से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ आएगा, यहाँ पे जाके आपको जेड स्क्वायर आएगा, या तो बेटा आपको इसमें मिलेगा आपको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इस तरीके से आपको डिफरेंट यहाँ पे आपको मिलेंगे पॉलिनोमियल फंक्शंस आपको इस वाले में मिलेंगे। तो उनकी क्या एप्लीकेशन है वो भी आपको बोला जाएगा। पहले हम उठाएंगे कॉलम फर्स्ट। कॉलम फर्स्ट को कैसे यहाँ पे ड्रा करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज द कॉलम सेकंड, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, जिसमें हमने ग्रिड ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि हमें किस तरीके से वहां पे जाके हम निकालते हैं कॉलम सेकंड। तो कॉलम फर्स्ट में क्या होता है, कॉलम फर्स्ट में जिसमें मुल्कन सिंबल होते हैं, मुल्कन सिंबल में हम यूज करते हैं बेटा दो तीन चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं। यहाँ पे हम ए यूज करते हैं, बी यूज करते हैं, ई यूज करते हैं, टी यूज करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हम सबस्क्रिप्ट में यूज करते हैं, सबस्क्रिप्ट में यूज करते हैं 1 और 2। ठीक है, 1 या 2 करते हैं। फॉर एग्जाम्पल A1 B1 A2 B2 E1, इस तरीके से, या T1 T2, इस तरीके से हम सबस्क्रिप्ट में ये चीज यहाँ पे यूज करते हैं। या हम यूज करते हैं U एंड G, ठीक है, AG BG EG TG, इस तरीके से। तो ये कैसे यूज करते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। तो इसी तरीके से हम थर्ड चीज भी यूज करते हैं कभी-कभी सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट में क्या आता है, प्राइम और डबल प्राइम आता है। मतलब इस तरीके से प्राइम हुआ ये और डबल प्राइम हुआ दिस। तो हम डबल प्राइम एंड प्राइम भी यूज करते हैं, और कहाँ पे किस तरीके से किस चीज को यूज करते हैं वो आपको बताना है। ठीक है बेटा, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जो अल्फाबेट है A B E N T, इसको कैसे यूज करते हैं
वो आप पहले देखिए। जो यहाँ पे जाके ए है, ए आर बी किस तरीके से, अगर वन डायमेंशन है, अगर वन डायमेंशनल इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो ई होता है आइडेंटिटी पे क्या है, वो यहाँ पे आपको बता रहा है कि यहाँ पे जो आइडेंटिटी होता है वो डायमेंशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वन लिखा हो तो वन डायमेंशनल, अगर वन टू लिखा है तो टू डायमेंशनल, अगर थ्री लिखा है तो थ्री डायमेंशनल। ई यहाँ पे जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आइडेंटिटी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज द डायमेंशन। तो डायमेंशन के हिसाब से अगर वहां पे वन लिखा है तो वन डायमेंशनल। तो वन डायमेंशनल के लिए हम दो चीजें यूज करते हैं, या तो ए करते हैं यूज, ना तो बी करते हैं। वन डायमेंशनल अगर आईआर है, इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, मैं आपको दिखाऊंगा एक एग्जांपल के जरिए से। अगर वन डायमेंशनल है, वन डायमेंशनल इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, तब जाके आप यूज करेंगे या तो ए या तो बी। अब ए कब यूज करेंगे, बी कब यूज करेंगे? ए तब यूज करेंगे इफ इट इज सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में यहाँ पे जाके सिमेट्रिक है, मीन अगर यहाँ पे वन है, कैरेक्टर में अगर वन है दैट इज सिमेट्रिक, अगर माइनस वन है तो एंटी सिमेट्रिक। इसी तरीके से अगर ये एंटी सिमेट्रिक है, वन डायमेंशनल है मगर एंटी सिमेट्रिक है विद रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, तब जाके बेटा यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक का मतलब होता है माइनस वन, तब बी लिखा जाएगा। अब देखिएगा एग्जांपल में, अगर आपके पास कोई एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हमने एक किया यहाँ पे यूज अभी, मैं उसके लिए आपको जस्ट एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आपने ये लिखा, ई लिखा, इसी तरीके से यहाँ पे C2 था, सिग्मा एक्स वाई एंड सिग्मा वाई जेड। तो मुझे क्या यहाँ पे, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या था, वन 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 वन, यहाँ इसी तरीके से वन वन वन, फिर यहाँ पे था वन माइनस वन माइनस वन, फिर यहाँ पे जाके था बेटा माइनस वन वन माइनस वन, फिर यहाँ पे था माइनस वन वन। आपको अगर नहीं दिख रहा है तो आपको मुझे सिर्फ यहाँ पे ये बताना है ये चीज। तो यहाँ पे क्या लिख रहे थे हम, टाउ वन। अब यहाँ पे पॉइंट ग्रुप होगा C2B, मैंने आपको पहले बता दिया ये पॉइंट ग्रुप है। यहाँ पे जाके क्लास है, दीज आर क्लासेस, और यहाँ पे आपका इररेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, एरे ऑफ कैरेक्टर्स, एरे ऑफ, उस एरे ऑफ कैरेक्टर्स से आप लॉजिकल सिंबल यहाँ पे निकाल रहे हो। First we will write here, if it is one dimensional, we will write we will write A or B. But who will decide A or B? Decide the C2, because it has only the one axis, that is the principal axis. C2 is the principal axis. See here, E means यहाँ पे जाके A or B, but C2 axis is one, means symmetric with respect to the principal axis. We will write here A. Second, in one dimension we will write A or B, but with respect to C2 axis it is symmetric. We will write here A. Here it is one dimension, we will write A or B, but with respect to the C2 principal axis it is minus one. We will write here B. Okay, understand this. Same here. If we see is this fourth one, this is the one dimensional, but with respect to the principal axis it is minus one, means it is antisymmetric. We will write here B. First, we will see whether it is the one dimensional or if it is one dimensional, we will write A or B. If A we will write only when it is just symmetric with respect to the principal axis. If it is anti-symmetric with respect to the principal axis, then we will write it as B. Okay. Second, for two dimensional, we will write here. For two dimensional, we have only one character, that is the E, and for three dimensional, we have only one character, that is the T. For two dimensional, we will write here. If there is a two-dimensional irreducible representation, then we will write here E. If it is three-dimensional irreducible representation, we will write T. For example, in case of C3 point group, you have done this, done that irreducible representation. C3 point group, there was this E, 2 times C3 and 3 times sigma E. There was 1, 1, 2, and this 1, 1, minus 1, and 1, minus 1, 0. See here, we will write, it is one dimension, we will write A or B, but with respect to the principal axis, that is the C3 axis, it is symmetric, we will write here A. It is one dimensional, but with respect to the principal axis, it is symmetric, we will write here A. It is two dimensional now, because E represents the dimension, because identity represents the dimension. It is two means two dimensional. Now we will write here, for two dimensional, it is not symmetric or antisymmetric, it is simply E. For two dimensional, we will write here E. Okay.
this was about the Millikan symbol. First, how you will represent the A, B, E, and T. Now, second, subscript GRU. Subscript, first we will see the subscript 1 or 2. 1 or 2, subscript 1 or 2. For subscript 1 or 2, 1 or 2. One, two. One, if irreducible representation, if irreducible representation, 1 minute. If irreducible IR is symmetric with respect to secondary axis or subsidiary axis. Secondary axes are subsidiary axis. Then we will write here 1. If irreducible representation is anti-symmetric with respect to secondary axis, then we will write here 2. For example, there are a number of examples in which the subsidiary axis is not present. In case of C2V point group, the subsidiary axis is not present. Then we will see another axis of symmetry, this plane of symmetry. We will see then plane of symmetry. Those point groups which are lacking of secondary axis, those point groups, if secondary axes are absent, if secondary axis is absent, then those point groups in which the secondary axis is absent, then the rule, subscript rule must be checked against the presence of plane of symmetry. Then we will see against the plane of symmetry. We will see here plane of symmetry with respect to the plane of symmetry. Similar, if it is symmetric with respect to the plane of symmetry, then 1. If it is anti-symmetric with respect to the plane of symmetry, then 2. If it is symmetric with respect to the, if it is symmetric with respect to plane of symmetry, then it is 1. If it is anti-symmetric with respect to plane of symmetry, then it is 2. See here example. Same example here. If it is E, C2, sigma xz and sigma yz. Okay. If it is here C2V point group, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, here 1 minus 1 minus 1 minus 1 1 minus 1 minus 1 minus 1 1. And just to give you the example, you can check if I am doing wrong here. Characters, I am not bothering about the characters at this time. I am only supposed to show you the how we will write the Millikan symbol correctly. Okay. See here. In case of this is the dimensional, one dimensional A. It is A. It is B. Why it is B? Because it is one dimensional, but it's anti-symmetric with respect to the principal axis. That is why B. This is also B. Okay. Now the second 1 or 2. See here in this point group the secondary axis is not present. So we have to check. We have to give 1 or 2 subscript with respect to the this axis, this plane. If it is symmetric, then we have to write 1. If it is anti-symmetric, then we have to write 2. 1 and 2. इस तरीके से आप लिख सकते हो बेटा, अगर यहाँ पे लगी सिमेट्रिक मीनस 1 माइनस 1 मीनस एंटी सिमेट्रिक. 1 के लिए हमें लिखना है, सिमेट्रिक के लिए हमें लिखना है 1 और एंटी सिमेट्रिक के लिए लिखना है 2.
तो यहाँ पे मैंने लिखा A1, A2, B1, B2, ओके। और अगर यहाँ पे इसी तरीके से अगर आप इसको देखेंगे, अगर यहाँ पे कोई भी पॉइंट ग्रुप ऐसा होगा जिसमें इन्वर्जन भी प्रेजेंट होगा, आपके पास बहुत सारे पॉइंट ग्रुप्स हैं जिसमें जाके इन्वर्जन भी प्रेजेंट होगा, if the inversion is present, then we see the subscript, there is another subscript there, G and U. G we used, if the irreducible G we used G, Girard, if irreducible representation is symmetric with respect to inversion center, inversion center, inversion center, and we will use and U if irreducible representation is antisymmetric with respect to inversion center. Okay. G is equal to +1 and U equal to -1. In case of, in the correct table, when the inversion center is present, when the inversion center is present. If the inversion center is present, then we will write, for example, in certain cases, if there is this, hypothetically, I will show you, hypothetically, if it is this, E, C2, I, sigma xz and I. For example, C, point I will not write here because it's not this. 1, 1, 1, 1, 1. And here it is 1, -1, -1, 1. If it is 1, -1, 1, -1. And it is 1, 1, -1, -1. आप देख सकते हो इसमें क्या कर सकते हैं। देखो बेटा, जस्ट एग्जांपल आपको समझाने के लिए इन्वर्जन किस तरीके से कर सकते हैं। ए लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसको बी लिखना पड़ेगा, वन डायमेंशनल है बट -1 है विद रिस्पेक्ट टू दिस बी, 1 -1 बी, 1 1 तो ए। ये आपको पता है कि 1 1 मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जाके ए के लिए मुझे यहाँ पे जरूरी होता है, वन डायमेंशनल के लिए मुझे देखना होगा ए लिखूंगा कि बी लिखूंगा, बट अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 लिखा होगा तो मैं जरूर यहाँ पे ई लिखूंगा। ओके, now see, with respect to, there is not secondary x is not present. Now we will check 1 or 2 subscript with respect to the plane. Now the plane is symmetric 1, antisymmetric 2, symmetric 1, antisymmetric 2. But for this we will not write. For this we will not write. Okay, I will check also, but we will not write for this E. In case of E, we will not write 2. With respect to plane, we will not we will not write this 2 and 1. But higher point is mentioned. Okay, we will write further. Here, with respect to this, this is 2, E2. Now see here, inversion. It is symmetric with respect to this, it is G. It is symmetric with respect to this, it is G. It is antisymmetric, it is U and it is U. Okay, इस तरीके से हम I को यूज करते हैं। जितने भी आप देख रहे हो इसमें सब कुछ इंफॉर्मेशन है। अब इसको देख रहे हैं आप बेटा अच्छे से कि इसमें A क्यों आया, वो पहले A क्यों आया, ये वन डायमेंशन है, या B क्यों आया वन डायमेंशन की वजह से, इसका मतलब पहले E आया, उसके बाद ये 1 क्यों आया, 1 इसकी वजह से आया, फिर ये G क्यों आया, ये I की वजह से। इसका मतलब अगर आपको किसी मॉलिक्यूल के बारे में कहीं पे भी मोलिकुलर सिंबल पता है तो आपको उसकी सिमेट्री के बारे में सब कुछ पता है। You know the symmetry. If you know the A1G, the molecular symbol of this is A1G or B2G and B1U and E2U, you know the symmetry of that particular this molecule. Okay. See next. Prime and double prime. Prime, superscript बहुत कम यूज होता है बट कभी कभी यूज होता है, इसलिए इसको मैं भी लिखूंगा प्राइम, प्राइम को ऐसे, एंड डबल प्राइम इज दिस, डबल प्राइम। Okay, if your reducible representation is symmetric with respect to, if IR is symmetric with respect to sigma h,
then it is single prime if IR is antisymmetric with respect to sigma h. Antisymmetric. Okay, prime को double prime. देखिएगा बेटा आप क्या यहाँ पे आपने अभी तक क्या पढ़ा है अभी तक आपने मुल्कन सिंबल ये चीज देखा कि अगर वन डायमेंशनल होगा, अगर वन डायमेंशनल होगा 1D, अगर 1D होगा तो ए आर बी, इसके बेस पे ऑन द बेस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस ई एक्सिस, ठीक है। फॉर टू डायमेंशनल 2D it is, for 2D it is E, and for 3D it is T, ओके। इसी तरीके से अगर सबस्क्रिप्ट देखेंगे, सबस्क्रिप्ट ये तो पहला था, सेकंड सबस्क्रिप्ट आप देखेंगे, सबस्क्रिप्ट में क्या है 1 और 2, तो फॉर सेकेंडरी एक्सिस और मॉलिक्यूलर प्लेन के रेस्पेक्ट में देखना है। विद रेस्पेक्ट टू सेकेंडरी एक्सिस और मॉलिक्यूलर प्लेन और मॉलिक्यूलर प्लेन, subscript GRU with respect to inversion center, with respect to inversion center. Similarly, double prime and single prime, superscript prime and double prime for sigma h. This is the information about this. Full information about इंफॉर्मेशन क्या क्या आपको अभी तक मिली इसके बारे में। मुल्कन सिंबल क्या बता रहा है आपको, मुल्कन सिंबल से आपको क्या क्या पता चल रहा है वो आप देखिएगा। मुल्कन सिंबल से अभी तक कितना पता चला आपको? फर्स्ट आपको पता चल रहा है इसके बारे में मुल्कन सिंबल, मुल्कन सिंबल टेल्स अस फर्स्ट डायमेंशन के बारे में बता रहा है, सेकंड प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में बता रहा है, सिमेट्रिक है क्या एंटी सिमेट्रिक है, सेकेंडरी एक्सिस के लिए बता रहा है, मॉलिक्यूलर प्लेन के लिए बारे में बता रहा है, इनवर्जन सेंटर के लिए बता रहा है, और फाइनली सिग्मा के लिए बता रहा है। मुल्कन सिंबल जो आपके पास है, मुल्कन सिंबल आपको बता रहा है अबाउट दिस डायमेंशन। कौन सा डायमेंशन है? 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है। इसी तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में बता रहा है, सिमेट्रिक है कि एंटी सिमेट्रिक है। सेकेंडरी एक्सिस के लिए बता रहा है कि सिमेट्रिक है कि एंटी सिमेट्रिक है। इसी तरीके से मॉलिक्यूलर प्लेन के बारे में बता रहा है और इन्वर्जन सेंटर और सिग्मा एच के बारे में बता रहा है, ठीक है। दिस वाज अबाउट द कॉलम फर्स्ट। कॉलम सेकंड के बारे में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि कॉलम सेकंड वी हैव ऑलरेडी डन दैट। तो मुझे सिर्फ यहाँ पे लिखना है फॉर कॉलम सेकंड, column second, it is composed of IR for irreducible representations, irreducible representation for the group, okay. Column second can be derived from, can be derived by using what postulates of Gott theorem. Okay. Now the third column third. You will see the column third and column fourth.
कॉलम थर्ड हम डिस्कस करेंगे और भी डिटेल में जब हम एप्लीकेशन पे आएंगे, बट यहाँ पे बताना जरूरी है। Column third represents the transformation properties of translational axis XYZ and rotational axis RX, RY, RZ. Column third जो यहाँ पे है, हम लोग column third देख रहे हैं बेटा। Column third के बारे में information अभी। Column third जो आपको बता रहा है, it represents the transformation properties of translational axes. Translational axes कौन सी है? For example, X, Y and Z. X, Y and Z जो आप पहले से देख रहे थे कि हमने कोई भी यहाँ पे यूज किया, कोई भी यहाँ पे सिंगल एलिमेंट यूज किया और वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन दूसरे में कन्वर्ट हो रहा था। तो XYZ जनरली हम it represents the transformation properties of translational axes XYZ and rotational axis RX, RY, RZ। ओके, इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर आप अभी इसको जब हम इसको पढ़ेंगे भी तो इसमें आपको देखेंगे कि यहाँ पे C2X है, C2V जो हम अभी पढ़ चुके हैं, C2V के बारे में आपको यहाँ पे एक्सिस भी है। मैं पूरा एक दिखाऊंगा आपको, तो उससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या क्या लिखा होता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा पहले इसमें किस तरीके से लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप C2V का पॉइंट कैरेक्टर देखेंगे पूरा, तो इससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से यहाँ पे ट्रांसलेशन और रोटेशन की कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल हियर C2V, C2 sigma XZ and sigma YZ. Okay, you will see here यहाँ पे जाके 1 1 1 1 1 1 1 1 इसी तरीके से 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1। तो यहाँ पे A1 A2 इसी तरीके से B1 B2। Now you will see here in this column third here is written as Z, यहाँ पे लिखा है RZ, यहाँ पे लिखा है X and RY and this Y and R। ठीक है, इसी तरीके से कॉलम फोर्थ में क्या लिखा है वो भी देखिएगा। यहाँ पे लिखा है X स्क्वायर, Y स्क्वायर, Z स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है XY, यहाँ पे लिखा है XZ और यहाँ पे लिखा है YZ। These are the quadratic functions and these are the translational or linear functions. These are the linear functions. The column third tells about the translational and rotational axis के बारे में आपको ये बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, अगर आपको देखना है कि रोटेशनल एक्सिस, तो आपको ऐसे लिखना होगा कि रोटेशनल, आपको जब आप अभी देखेंगे इसमें, इसके केस में, आया के केस में, तो वहाँ पे रोटेशनल होते हैं। तो आपको कौन सा यहाँ पे यूज होगा, कौन सी प्रिंसिपल आपको रोटेशन दिखा रही है। तो आप देखेंगे A2 यहाँ पे दिखा रहा है, इसी तरीके से B1 में भी है रोटेशन और जाके B2 में भी है। बट अगर आप देखेंगे A1 में जाके रोटेशन नहीं है, क्योंकि जिसमें R है उसमें रोटेशन है, रोटेशनल एक्सिस प्रेजेंट। इसी तरीके से जिसमें X, Y और Z है उसमें ट्रांसलेशनल एक्सिस, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, उससे वहां पे जाके ट्रांसलेशन एक्सिस, उसमें जाके ट्रांसलेशन एक्सिस प्रेजेंट। जो फोर्थ वाला है, जो फोर्थ कॉलम है, फोर्थ कॉलम इंडिकेट्स द ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन X, Y, Z। ओके, जो आप देख रहे हैं कॉलम जो थर्ड है यहाँ पे, जिसमें लीनियर फंक्शन हम बता रहे हैं, लीनियर फंक्शन के बारे में। ये जो एरिया है जिसमें रोटेशनल एंड लीनियर फंक्शनल है, इट रिप्रेजेंट्स बोथ ट्रांसलेशनल वेक्टर्स एंड द p ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसमें लिखा है px, py, pz। यहाँ the symmetry species correspond to 6 symbols x, y, z, rx, ry and rz। 6 symbols वहाँ पे होते हैं जनरली, x, y, z, rx, ry and rz are separately worked out in this section that follows। x, y, z represents the coordinates which form an orthonormal basis of p orbital। ठीक है, x, y, z p orbital के लिए जनरली होता है, and we call such systems as orthogonal coordinate system।
The p orbitals are directed along the 3 coordinate axes so that a symmetry operation has the same effect on the p orbital as it has on the coordinate axis. इसी तरीके से जो fourth column होता है, fourth column, this part of the table lists square and binomial products of xyz coordinates. The symmetry species to which these combined functions belong can work it out, but with slightly increased amount of algebra. These functions represent both polarizability parameters and d atomic orbital. तो ये आपको यहाँ पे देखना है कि जो ट्रांसलेशनल है उसको हम फिर कंसिडर किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे हम उसको यूज कर रहे हैं कि ट्रांसलेशनल में एक्स वाई जेड, ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे लिखते हैं इसको कि अगेंस्ट दिस C2, चाहे आपके पास C2V पॉइंट ग्रुप है, C2V पॉइंट ग्रुप के अगेंस्ट में हम किस तरीके से ट्रांसलेशनल को यूज करते हैं और इसी तरीके से रोटेशनल को कैसे यूज RX, RY, RZ लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन प्रेजेंस ऑफ दिस इन केस ऑफ ट्रांसलेशनल या रोटेशनल किस तरीके से हम लिखते हैं यहाँ पे इस कॉलम में, कॉलम थर्ड, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा. बट अभी के लिए आप स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनना चाहिए, फिर आप बोर नहीं होता है, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट को ज़्यादा यहाँ पे इलॉबरेट किया, सेकंड तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके थे, और थर्ड के लिए मैंने अभी के लिए आपको ये बता दिया कि आप थर्ड के लिए याद रखिएगा लीनियर एंड रोटेशनल फंक्शन या ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल फंक्शन के लिए यूज किया जाता है, एंड फोर्थ इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन. ओके, तो दिस इज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कैरेक्टर टेबल. एंड जो कैरेक्टर टेबल यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इस कैरेक्टर टेबल को हम हर एक के लिए जो मैंने आपको आज असाइनमेंट दिया, उस असाइनमेंट में देखेंगे. अगर आपको ये चीज पता है, अगर आपको ये वाला पता है, तो आप ये चीज इजीली निकाल सकते हो. ठीक है, मोर देन सिंपल. और क्वेश्चन भी इसके बेस पे आता है कि आपको दिया जाता है ये पार्ट लिख के होता है और आपको ये चीज निकालना होता है. तो जनरली अगर आप देखेंगे अभी तक जितनी भी नेट के रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, वहां पे या तो पीरियड टेबल दे चुका होगा, उसके बाद आपको वहां पे बोलेगा कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन, जो भी ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, आप देखेंगे इसके इसके अंदर कितनी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है इस कैटेगरी में. तो आप देखेंगे कि हम एप्लीकेशन पार्ट पे आ रहे हैं. इसके बाद इसके मतलब रिगार्डिंग दिस IR इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के रिलेटेड कितनी इंफॉर्मेशन है इसमें, कि कौन से IR एक्टिव बैंड से, कौन से IR इनेक्टिव बैंड से, ये बताएगा आपको. इसी तरीके से आपको हाइब्रिडाइजेशन या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेंचिंग के बारे में सब कुछ इसमें छुपा हुआ है. ओके, तो यू विल सी द एप्लीकेशन पार्ट फॉर दिस कैरेक्टर. आपको जो कैरेक्टर समझ आएगा, उस कैरेक्टर में आपको मैंने आपको बोला कि मेजर पोर्शन आपको इस वक्त देखना है, फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड. और ये तो पता है आपको, ये वाला कॉलम भी आपको पता है दैट पॉइंट कौन सा है और क्लास किस तरीके से लिखते हैं. ठीक है, ये वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है. और इस पार्ट को आपको या तो दिया रहता है, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं और ये मैथमेटिक्स है डिटेल में, इसलिए जाके हमें उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती केमिस्ट्री में. तो हम इसकी तरफ जस्ट हम इसको याद रखते हैं किस तरीके से आता है. मैं कल बताऊंगा जो ये वाला पार्ट कि जेड एक्स एंड वाई किस तरीके से आता है, आर जेड किस तरीके से आता है, किस तरीके से यहाँ पे जाके रोटेशन एंड ट्रांसलेशन हम देखते हैं. बट दिस पार्ट जो ये वाला है, जो फंक्शनल है, पॉलिनोमियल फंक्शनल है, उसको हम यहाँ पे यूज नहीं करते. जस्ट यू हैव टू यूज दिस. तो ये यूज होगा डी ऑर्बिटल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है इसमें. एक्चुअली बाद में आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर, ये हम d को यूज करते हैं रिप्रेजेंट, जब हम इसमें आएंगे हाइब्रिडाइजेशन में. यहाँ पे लिखा है xy, तो हम इसको लिखते हैं dxy. यहाँ पे लिखा है xz, तो हम लिखते हैं dxz. यहाँ पे लिखा है yz, तो लिखते हैं dyz. यहाँ पोलराइजेबिलिटी के बारे में भी ये चीज बता रहा है. ठीक है, आप देखेंगे धीरे धीरे, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन कैरेक्टर करेंगे. ठीक है, तो इसको इसी तरीके से आप सिंपल वाले कैरेक्टर भी कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल ये C2V आया ही, मैं इसी को एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो C2V कर सकते हो, C2H कर सकते हो, इसी तरीके से बेटा C3V कर सकते हो. ये 3 कैरेक्टर आप करेंगे, ये सेकंड सेम में भी थे. तो अभी आपको मैंने दिया, आपको तो सर मैंने आपको बता दिया कि D3H कर लो, D3V कर लो, और टेट्राहेड्रल कर लो, और यहाँ पे जाके C4V. ये 4 मैंने आपको बता दिए कि करने के लिए करना क्या है. करना ये है कि आपको इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालना है यूजिंग गॉड थ्योरम. You have to derive the irreducible representation by using God theorem. Then you have to derive this welcome symbol from the column second. ये करने के बाद ये वाला पार्ट जो है इसको आप हमेशा याद रखेंगे किस तरीके से इसको एप्लीकेशन फॉर्म में यूज कर रहे हैं. तो इस तरीके से आपको ये कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा.